अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। शादरा टाउन के इलाके में एक सुतेली मां को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या हकायक हैं, किस वजह से मां को कत्ल किया, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और मुलजिम खुद अब इसके बारे में क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। सुतेली मां को कत्ल करने वाले मुलजिम को शादरा टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम हमारे पास है, उससे पूछते हैं कि सुतेली मां को कत्ल करने की वारदात इसने किस तरह से की और मां को कत्ल क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुर्रहमान। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्यों मारा सुतेली मां को? बस लड़ाई झगड़े घर के हर टाइम। 20 बच्चों को निकाल दिया, सबको घर से निकाल दिया। जगह बेचने का कहते थे तो जगह नहीं थी बेचने देते। क्यों? बस वो कहते थे मकान मेरा, तुसी दफा ही हो इतना। तो तुम्हारे वाले ने दूसरी शादी क्यों की? बस पहली वालदा तुम्हारी कहाँ है? उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। उसकी डेथ के बाद दूसरी शादी वाले ने कर हाँ ली। जी। कितने बरस पहले की थी? 4 साल पहले। 4 साल पहले? जी। तो फिर 4 साल में तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि सुतेली माँ को कत्ल कर दिया, लड़ाई झगड़े 4 साल में इतने ज़्यादा हो गए कि किसी को कत्ल कर दे। लड़ाई झगड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ लेकिन माफी ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਬ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ किस गल तो लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ तेरे ਨਾਲ? किस गल तो लड़ाई ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ? ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? 5। ਤੇ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ? ਤੇ 2 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2-4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਗਲਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੌਣ? ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੇ 'ਚ ਲਪੇਟਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੱਲੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਜੱਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜੱਲੋ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ? 2 ਦਿਨ। 2 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੋਈ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੱਲੋ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਖਿਲਾਫ? ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ? ਕਾਰਪੈਂਟਰ।
कारपेंटर ਹਾਂਜੀ। नशा भी करना ਨਹੀਂ शादी हुई हुई ਹਾਂਜੀ किन्ने बच्चे ने 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲਦ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਉਦੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਲੜਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤੰਗ ਸੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਐਸਾ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ। ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਰ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਰ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦੋਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਤੇਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਰ ਘਰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਰ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਚੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ FIR ਹੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਣਬਣ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਬਸ ਇਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਰ, ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਘਰ ਸਰ ਵੇਚਣਾ ਵਾਲਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਡਰਦੇ ਸਨ? ਸੋਚੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਧੀਆਂ- ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ बीवी कार छड़ के चली गई, दूसरे भाई तू कहना चले गए, किस तरह लड़ाई की वजह की बनी? ਬਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। फिर तो तेरे वाले साहब उन्हें मना नहीं करते सन? ਬੜੀ ਦਫਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਵੀ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मुलज़िम की आपने बात सुनी कि उसका ये कहना था कि सुतेली माँ जो है वो घर फरोख्त करने से मना करती थी। उसका कहना ये था कि जो घर है वो उसका है, लेकिन मुलज़िम घर फरोख्त करने के लिए बाज़िद था, जिसकी वजह से इख्तलाफ बढ़ता हुआ इस हद तक आया कि इसने गले में फंदा डालकर सुतेली माँ को कत्ल कर दिया। मकतूला मीना के भाई जो मुकदमे में मुद्दई भी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह कत्ल की वारदात हुई और सुतेले बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ये बताइएगा, आप मुकदमे के मुद्दई हैं और आपकी बहन को सुतेले बेटे ने कत्ल किया, क्या वजह थी? हुआ क्या? वाक़या कैसे पेश आया? मैं मिलने के लिए अपनी बहन को उनके घर गया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा ये जो अब्दुल रहमान है ये झुका हुआ था मेरी बहन के ऊपर और दूसरे लोग खड़े हुए थे। ठीक है। मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे देखा ना कि ये इसका भाई आ गया है, हाँ, उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया और ये अब्दुल रहमान मुझे देखकर भाग गया। और मैं दूसरे जो हैं वो एक उसकी बीवी थी, अब्दुल रहमान की बीवी थी शुबाना, एक दूसरे भाई की बीवी थी, एक बाद में पता चला है उसका नाम इमरान है, उसकी बीवी थी मदीहा, और एक तीसरा भाई इनका जिशान और एक उसकी बीवी। ये सब इधर उधर भाग रहे थे मुझे देख के, लेकिन मुझे अपनी बहन की फिक्र पड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने बाहर निकला तो मुझे ये सारे मेरे सामने भाग गए ये। फिर किसी ने 15 पे कॉल कर दी और फिर बाद में वहाँ पे पुलिस आ गई। अच्छा, फिर इस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजिम को गिरफ्तार भी किया। वजह क्या थी? बताया जाता है कि जो आपकी बहन थी मकतूला, उसका शायद ये इख्तलाफ था बच्चों के साथ कि वो घर फरोख्त करना चाहते थे और वो घर फरोख्त होने में रुकावट थी। मामला क्या था? कत्ल की वजह क्या बनी? जी शेख साहब, वो मसला इनके साथ ये था कि इनका एक मकान था। अच्छा। ये तीनों बेटे और तीनों बहुएं जो इनकी बीवियां थी वो अपने बाप से कहती थी कि मकान को बेचें, हमें पैसे दें। ठीक है। हमारी हमशीरा जो है वो भी कहती रही कि इनको इनके पैसे दे दो। अच्छा। हमें तो 10-5 लाख रुपए का अलहदा भी ले लेंगे ना अगर ये नहीं मानते तो। ठीक है। तो इनको इनका दिया। बाप इनको कहता था अच्छा मैं दे दूंगा, मैं देखता हूँ, करता हूँ। तो उसमें इन लोगों ने यही उसमें शक निकाला कि ये जो हमारी बहन थी मीना बेबी कि ये नहीं बिकने दे रही। अच्छा। तो उसमें शेख साहब उसका क्या गुनाह था? मकान तो उनके बाप के नाम था, बेचता तो बाप बेचता, नहीं बेचता तो बाप नहीं बेच रहा था। हाँ। तो इन्होंने जो सारी बातें थी ना सारी हमारी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। अच्छा। अच्छा, ये कहते थे कि जो आपकी बहन थी, जो इसकी मुलजिम की जो सुतेली माँ भी लगती है वो कि वो कहती थी कि हमारे घर भी ना आया करो, इस तरह के इख्तलाफात। और पहले ये बताएं कि शादी मतलब दूसरी शादी थी मकतूला की जो है, और शादी यहाँ पे कैसे हुई? रिश्ता किसने करवाया? शादी की वजह क्या बनी? फिर इख्तलाफात शुरू किस तरह से हुए कि सुतेली माँ तो माँ होती है, चाहे उसके नाम के साथ सुतेला ही लगे। तो इस तरह से इतना अग्रेसिव मुलजिम हुआ कि गले में फंदा डाला और मार दिया। शेख साहब, इनको शादी बैठकर हमारे मिल के सलाह मशवरे हुई दोनों घरों से। अच्छा। और शादी में इसके बेटे भी शुमार थे, इसके भाई भी शुमार थे। अच्छा। सब काम जो है हमारा अपना रजामंदी से था दोनों तरफ से। ठीक है।
तो बाद में हमें क्या पता था कि ये इसके बस की बात नहीं है। हमने ये बातें इससे की थी कि तेरे जवान बेटे हैं, तो ये मसला, इसने कहा ये मेरा मसला है, ये आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। हालांकि हमने इसको पहले कहा था कि ये आपकी जवान औलाद है। इसने ये कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का, हाँ मुझे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। ये बात है। अच्छा, नहीं तो शादी करने की जब आप बात शुरू हुई तो बच्चे शामिल थे, आपने बताया बहन भाई भी शामिल थे। हाँ, इसके तो बच्चे फिर इख्तलाफ शुरू जो हुआ वो किस बात से हुआ? बच्चे साथ नहीं रहते थे, क्योंकि हमने वो घर भी देखा है, तो उसमें कोई ऐसी लगता भी नहीं है कि कोई बहुत अमीर लोग थे या बड़ी पैसे की लहर बहर थी। एक घर ही था जी। और वो भी सुना है कि जो मकतूला है वो बड़ी परहेजगार भी थी और लोगों के साथ अच्छा उनका मिलना सर ये था। तो माशाल्लाह आपने जाके मोहल्ले में देख लिया है कि आपने हर जगह उनको देख लिया है कि उनका किरदार भी आपने देख लिया, सुन लिया। तो ये इनकी बाप से पहले, इनका पहले भी झगड़ा था ये। अच्छा। हाँ, ये कोई इनका नया नहीं था। अच्छा, वालिद के साथ इख्तलाफ वालिद था? के साथ इख्तलाफ था। अच्छा। तो वो वालिद घर से चला जाता था, बाद में वो मेरी बहन से लड़ाई करते रहते थे। अच्छा। कि तुम उसको बोलो मकान बेचे, ये करे वो करे। वो कहती थी नहीं, मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा बाप है तो तुम खुद जाओ, हाँ उसको जाके खुद कहो हाँ कि बेचे ना बेचे। कह रहे थे तुम्हारी वजह से बिकेगा, तुम हमारी हेल्प करो। और वो उसको भी कहती थी, अपने मियाँ को भी कहती थी कि इनका दे दो। अच्छा। लेकिन वो भी बेचारा अल्लाह जाने उसको क्या परेशानी थी, वो जाता कहाँ, क्योंकि सारे तो ये बेरोजगार थे, काम करते नहीं है। हाँ वो कभी कोई कर लेता है, कभी नहीं करता, कभी कर लेता है, कभी नहीं करता। नहीं तो बाप होता है, वो तो औलाद का नुकसान चाहता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और जब सौतीली माँ को रोटी और उसका शोहर अच्छी तरह रख रहा था, वो इनको हजम नहीं हो रहा था। हाँ ये इनको बर्दाश्त नहीं था। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये बात भी सच है कि जब आपकी बहन की शादी हुई और उससे शादी करने की असल वजह भी ये थी कि ये अपने बाप को खाना बर वक्त नहीं देते थे, पूछते नहीं थे, मजबूरी की वजह से उसको इस उम्र में दूसरी शादी करना पड़ी। उन्होंने पहले कहा था कि मुझे शादी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सुना है कि ये अच्छी औरत है, मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिश्ता भेजता हूँ। अच्छा। वो उसने बेचारे ने भेजा और उसने किया। अच्छा। तो इन्होंने बर्दाश्त नहीं, इसके बेटे और 3 बहुएं। हाँ। एक शुबाना नाम की औरत है, ठीक है। और एक जिशान की बीवी है जिसका नाम हमें आज भी नहीं पता। अच्छा एक उसकी बीवी, दोनों बहनें हैं दोनों भाइयों के घर में। अच्छा तो वो इनके पास कोई प्लाट था, वो औरतें कहती थी कि हम ये प्लाट बेच के तेरे ऊपर लगा देंगे, अच्छा हमने तुझे मार देना है। अच्छा हाँ, इसकी बीवी जो मुल्ज़म पकड़ा शुबाना, और उसकी बहन जिशान की बीवी। अच्छा ये वार्निंग थी उनकी हम अच्छा इसको, बहन हमारी को, अच्छा कि हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा। एक इख्तलाफ ये भी सामने आया कि जो मकतूला थी, वो जो मुलजिम है वो उसके घर में शायद बच्चा बड़े सालों के बाद हुआ, तो शायद वो भी ये कहता था कि जो उसकी सुतीली माँ है उसकी वजह से उसका बेटा बीमार अक्सर रहता है। नहीं, ये भी बात मैं देखें सर, मैं आपको बात बताता हूँ। यही मुल्ज़म, इसकी एक बच्ची थी 2 माह की, और इसकी बीवी लड़ाई करके अपने इसी से लड़ाई करके इससे चली गई। उनकी बच्ची माह 1.5 माह वो नहीं, बल्कि 2 माह तक इसी ने उसको संभाला, हमारी बहन ने, अच्छा मीना बीवी ने। अच्छा कि लड़ाई इनकी है, बच्चे का क्या गुनाह है अच्छा ठीक है। इनकी बेटी को। तो अगर वो ऐसी होती तो वो इनकी बेटी को क्यों संभालती? छोटी सी बच्ची थी तकरीबन कोई इतनी बड़ी। अच्छा तो इसकी बीवी छोड़कर इसको चली गई अच्छा। कि मैं नहीं आ रही। ये जैसे घरों में झगड़े और होते हैं। जिस सुतीली माँ को उसने कत्ल किया वो उसकी बच्ची को भी पालती उसकी रही। बच्ची को 1.5 महीना खुद, अच्छा कि उसको फीडर देना, खाना देना, दूध पिलाना पाबंदी से। बल्कि जब हम फ़ोन करते थे वो कह रहे थे अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी। हम कहते थे आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए या हम आ जाएं। वो कह रही थी नहीं मैं आ जाऊंगी, ये छोटी सी है तो ये अब अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी, अब मेरा घर बन गया। अच्छा, जो बहनें होती हैं वो जाहिर है जब अपने मेके या आपके घर आती होगी आपकी बहन, तो कभी उन्होंने इस तरह का इजहार किया कि अपने घर में खुश हैं, शोहर के साथ उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है और जो बच्चे हैं
उनके साथ कोई इख्तलाफ कभी इस तरह का जिक्र हुआ? जी ऐसा हुआ जिक्र। क्या कहते हैं? वो कहती थी कि इसके जो बेटे हैं वो मुझे अच्छा नहीं समझते, कि हमारे घर में वो रोज शोर शराबा करते हैं, परेशान करते थे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कभी नहीं, हम तो यही समझते थे कि घर में कौन सा ऐसा घर है जिसमें छोटी मोटी बातें नहीं होती। तो शेख साहब इसीलिए तो, क्योंकि हमारा बहन भी अच्छा आदमी था, उससे हमें कोई शिकवा नहीं हुआ था कभी। अच्छा, हाँ, उसने इसी वजह से हम चुप रहते थे कि वो कहता था कि यार हो जाएगा मसला, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, सीधा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसकी 4-5 साल हो गए, उससे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बीवी भी उससे खुश थी, आप लोग भी खुश हम थे? भी खुश थे उससे। अच्छा अच्छा, दूसरा ये भी एक बात बताएं कि जो मुकदमा है, FIR है, उसमें आपने एक जो मुलजिम है, जो सुतेला बेटा था आपकी बहन का, अब्दुर्रहमान, उसके अलावा भी कुछ लोगों को नामजद किया है या मुशावरत उसकी डाली है, उसकी वजह क्या है? सर वो मुलव्वस थे और मौके पे मौजूद थे। अच्छा, तो क्या कहना है सर, भाई इनका, हमारी बहन तो मारी गई ना, हाँ, तो इनका क्या गया। तो मुलजिम फिर कत्ल की वारदात करने के बाद वहाँ से जब फरार होता है जी। तो फिर पकड़ा कैसे जाता है? पुलिस तो कहती है कि कहीं जल्लों के इलाके में उसको दरबार से पकड़ा, हाँ, इसी तरह वो से हुआ जब- या उसने खुद गिरफ्तारी दी? ये वो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैंने पूछा था जाके सब इंस्पेक्टर से अच्छा, कि सर ये, उन्होंने कहा कि हमने इसको पकड़ के लाए हैं। तो वो पकड़ के ही लाए होंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप अपने बहनोई से मिले, उनसे कोई बातचीत हुई? वो क्या कहते हैं कि तो वो एक तरफ बेटा है, एक तरफ बीवी का कत्ल हुआ? क्योंकि जी वो भी उनके साथ उनके बाप हैं, हाँ, हो सकता है कि वो मुलव्वस हैं इसमें। लेकिन बात ये थी कि जब वो थाने में मैं गया था, वो हाथ पांव जोड़ रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, तो ये तो अल्लाह ही जानता है अब। और मोहम्मद अली साहब जो हैं, ये SHO साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे लिए। उन्होंने हमसे बड़ी मोहब्बत से काम किया, बड़ी मोहब्बत से बात की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी वो जो कार्रवाई है इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल यकीनन पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी भी डल गई है। कोई ये भी हो सकता है कि आप अपने बेनोई के कहने पे या और लोगों के कहने पे इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है, कुछ ऐसा तो नहीं होगा? सर ये कानून है, कानून के दायरे में जो होगा वो इंसाफ, इंशाल्लाह हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमें तो कानून पे उम्मीद है ना जी। तो हमारे जो सकलैन साहब हैं, गोंदल साहब जी, उन्होंने ना तो हमसे कभी कोई पैसा लिया है, तो ना कभी पैसा मांगा है। तो हम तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि जैसे इन्होंने इसको पकड़ा है और दूसरे मुल्ज़िमान को इंशाल्लाह जल्दी पकड़ेंगे। मकतूला के मुकदमे के मुद्दई जो हैं उनकी आपने बात सुनी, भाई भी हैं, उनका ये कहना था कि जिस तरह से मरकज़ी मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, वो उम्मीद करते हैं कि इस केस में जिन लोगों की भी कत्ल के मामले में मुशावरत थी उन्हें भी जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस बात का भी उन्होंने जो है इजहार किया है कि जो उनकी मकतूला बहन थी उसने पहले भी कई बार इजहार किया था कि उसके शोहर के जो बच्चे हैं वो पहले भी कत्ल करने की धमकियां दे चुके हैं और उनके साथ उनका रवैया भी दुरुस्त नहीं था। गुलाम सकलैन गोंदल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टाउन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब आपका। सकलैन साहब, जो सुतेली माँ को कत्ल करने का वाक़या हुआ, किस तरह से वारदात हुई, आपके पास इन्वेस्टिगेशन आई, मुलज़िमों को कैसे गिरफ़्तार किया और बेटा ही माँ का कातिल निकला? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये 28 तारीख का वाक़या है जी। ठीक है। 28/9 का। ये अब्दुर्रहमान नामी बेटा है, इसकी सुतेली माँ थी, मीना उसका नाम था।
इसकी असल माँ जो 6-7 साल पहले फोत हो जाती है। ठीक है। तो अब्दुर्रहमान जो है, ताहिर अब्दुर्रहमान का वालिद है। ठीक है। उसने ये दूसरी शादी कर ली। उसकी मेन वजह ये थी कि जो सुनने में आया है कि उसको ये खाना शाना पकाने के लिए, रोटी शोटी देने के लिए उसको ये बर वक्त खाना नहीं देते थे, तकलीफ में था। ठीक है। उसने अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए उसने यमीना नामी औरत से शादी कर ली जो 4-5 साल पहले से थी। ठीक है। उसको अपने घर में रह गई। ये पहले सारे इकट्ठे रहते थे। ये 3 भाई 2 बहनें थीं। 2 बहनें ब्याह दी, 3 भाई थे। तो इनका घर में अपने वालिद साहब के साथ झगड़ा रहने लग गया। जब झगड़ा होता था तो ये अपने वालिद को अब्दुर्रहमान कहता था कि हमें जायदाद में से हिस्सा दें। जायदाद है सिर्फ 5 मरले का घर है। ठीक है। तो उसने कहा मैं अगर आपको ये घर दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसको अब्दुर्रहमान को ये खदशा था कि ये यहाँ से चला जाता है और अगाह बगाह हफ्ते 10 दिन के बाद ये चक्कर लगाता है अपने घर। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा इसके अपने वालिद साहब के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ मुँहमारी हुई इस बात के। इसको ये खदशा था कि मेरा वालिद जो है वो कहीं ये मकान जो है ये अपनी सेकंड वाइफ उसकी अपनी सौतेली माँ के साथ ना करते। ठीक है। ये इसी कश्मकश में 2-4 मरतबा पहले आता है। 28 तरीक को 2:30 बजे 2 बजे ये हस्बे मामूल आता है और इसके बकौल जो हमने तफ्तीश की है, इसके पूछा है तो इसने कहा है कि जी मैं अंदर आया हूँ तो मेरी वालदा ने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उसने ये कहा जी तू अपने प्यो दे होंदियां आया कर, तू कल्ला ना थे आया कर। ठीक है। जो तो मैं कल्ली हुआ तू ना आया कर। लेकिन उस औरत के बारे में मैंने ये सुना था कि वो बच्चों को कुरान पाक का दर्स देती थी, नमाज भी पढ़ती थी। अच्छा। अच्छी खातून थी। ठीक है। यहीं पर ही इसका आपस में कुछ तल कलामी होती है और इसके बकौल के ये पहले थप्पड़ मारता है, वो गिरती है चारपाई पे। तो बूढ़ी औरत थी, ये 32-33 साल का जवान लड़का है, वो 57-58 साल की बूढ़ी औरत थी। तो इसने वाइट कलर का एक कपड़ा लिया, वहीं से उठाया दुपट्टा टाइप, वो इसके गले में डाला और इसको गला दबा के इसको कत्ल कर दिया। ठीक है। कत्ल करने के बाद ये यहाँ से भाग जाता है। ठीक है। उतनी देर में 15 की कॉल होती है। 15 पे हम जाते हैं, मेरे डीएसपी साहब, हम लोग सारे एसएचओ साहब, मैं, सारे लोग जाते हैं, देखते हैं तो लोगों ने हमें बताया कि जी थोड़ी देर पहले इसका बेटा आया था अब्दुर्रहमान। तो ये सारा जो वाक़या है ये अब्दुर्रहमान ने ही किया। ठीक है। बहरहाल मुद्दयत पे उसके जो मीना के भाई की मुद्दयत में, रज़ा अहमद की मुद्दयत पे ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। ठीक है। हम उसकी हमारे एसपी साहब उस्मान टीपू साहब, हमारे डीआईजी साहब अतर इस्माइल साहब और हमारे एसएसपी साहब ने मुलज़म को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। और साथ हमारे जो एसपी साहब हैं उस्मान टीपू साहब, वो छोटा जुर्म हो चाहे बड़ा जुर्म हो, वो खुद स्क्रूटनी करते हैं। ठीक। और गाइडेंस भी देते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि मुलज़म के पास तो मोबाइल ना था। बहरहाल हमने सोर्स पैदा किए और हमें एक जगह से फिर इत्तला मिलती है कि ये जल्लो पिंड के साथ एक दरबार है। उसका दरबार का नाम मेरे जहन में नहीं है। अगर आप उधर आ जाएं तो ये उधर से आपको पकड़ा जा सकता है। ठीक है। ये अक्सर उधर भी जाता था पहले। हमने टीम ली, हम वहाँ पहुँचे तो इसने अपनी चादर ऊपर की हुई थी, तो मलंग टाइप जैसे बैठते हैं, वो चादर को ऊपर ली। तो हमने जाके देखा, पहले ढूंढा, देखा तो हमें
ना पता चला। अचानक मैं जाके एक बंदे की चादर उठा के देखता हूँ तो नीचे वो अब्दुर्रहमान होता है। ठीक है। हम उसको मौके पे उसको पकड़ लेते हैं, ला के हम उसकी तफ्तीश करते हैं। तो तफ्तीश में वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताता है कि मैंने ही कत्ल किया है और मैं यहाँ से फिर भाग गया था। डर के मारे मैं दरबार पे जाके बैठ गया था क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे खाना खाने की। यहाँ कोई लंगर शंगर आता था, मैं खाना शाना भी खा लेता था। बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको गिरफ्तार किया। इंशाल्लाह सुबह इसका रिमांड लेंगे। ठीक है। और रिमांड लेने के बाद इसका वो जो जिससे आलाए कत्ल जो है जो दुपट्टा है वो बरामद करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह उसको उसके जुर्म की सज़ा जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ठीक है। अच्छा सकलैन साहब, मुलजिम आपने गिरफ्तार कर लिया, जल्लो के एक इलाके में दरबार है, वहाँ से आपने गिरफ्तार किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कुछ सवाल हैं, वो ये हैं कि जो वालिद है वो अपनी मर्ज़ी से यकीनन परेशानी की वजह से दूसरी शादी करता है और बेटा मुतालबा करता है कि उसे जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि कत्ल की असल वजह जो है वो 5 मरले का घर है? जी बिल्कुल, वो 5 मरले का घर ही है क्योंकि वालिद इसका जो है वो राजगिरी करता है। ठीक है। ये जो अब्दुर्रहमान है ये तरखान, ये जो लकड़ी का काम करता है, खिड़कियाँ दरवाजे शिवाजे बनाता है। ठीक ये है। इतनी कोई मजबूत फैमिली या मजबूत इनका कोई कारोबार नहीं है। ठीक है। इसने ये सारा कुछ एक प्री प्लान एक अपने जहन में इसका कोई होगा कि मैं अगर ये अपनी माँ को उसकी माँ को रास्ते में से हटा दूँ तो मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा और ये जायदाद जो है वो हमारे वालिद जो है मजबूर हो जाएगा हमें देने पर। ये मेरे सामने तो अभी तक ये बात है। अच्छा सकलैन साहब, मुलजिम से जब हमारी बात हुई तो उसने ये भी बताया कि वो उसकी बीवी उससे नाराज़ होकर अपने मेके गई हुई है और उसके साथ भी इसकी नाचाकी चल रही है। करैक्टर कैसा है इसका? इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड है इसका? पुलिस के पास रिकॉर्ड याफ्ता है? किसी किस्म का मुकदमा हो इस पर? प्यारे भाई, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तहकीक तफ्तीश जारी है। ठीक है। अभी तो इब्तिदा है, तो जो कोई सामने चीज़ आएगी हम ज़रूर आपको इसके बारे में भी आगाह करेंगे। ठीक है। सकलैन साहब, जो खातून कत्ल हुई है, जो सुतेली इसकी माँ है मुलजिम की, उसकी मुद्दईयत उसका मुकदमा जो है उसमें मुद्दई उसका भाई है। इसके वालिद का मौक़िफ़ कोई सामने आया? वो बेटे के साथ हमदर्दी रखता है? आज इसकी गिरफ्तारी डाली है, उसके बाद उनको हम शामिल तफ्तीश करेंगे। ठीक है। जिस बंदे का जो किरदार होगा हम इंशाल्लाह 302 के मामले में हमारे अफसरान वाला सारे स्क्रूटनी करते हैं। ठीक। एक जगह पे ये तफ्तीश सुनी नहीं जाती, ये 3-4 जगह पे सुनी जाती है, उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं। लेकिन अभी कब्ज़ल वक्त हमें ये कहना नामुनासिब होगा कि किसका क्या किरदार। अच्छा, अभी किसी और लोगों का या और किरदार भी शामिल हो सकते हैं इस कत्ल में? ये नहीं मैं कह सकता हम शामिल, तो क्योंकि FIR में नामजद उन्होंने किए हैं मुद्दई साहब ने। ठीक है। तो मुद्दई साहब की जो जिनको भी उन्होंने नामजद किया है वो हम उनको बुलाएंगे और इंशाल्लाह उनको पूरी तरह अच्छी तरीके से इंटरोगेट करेंगे, उनका बयान सफ़ा मिसल पे लेके आएंगे। सकलैन साहब, यकीनन अभी इनिशियल आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, कुछ इस बारे में पता चला कि मकतूला का अपने शोहर के साथ कैसा रवैया था? उसके साथ कोई झगड़ा रहता था या सिर्फ इसी को गर्ज थी कि बाप की जायदाद में से इसे हिस्सा मिल जाए और वो 5 मरले का घर बिक जाए? मकतूला जिसके बारे में महल्लेदारान ये कहते हैं कि वो शरीफ औरत थी, नमाजी परहेजगार थी और वो लोगों ने ये भी बताया कि हमने उसे कभी बाई देखा नहीं। तो ऐसा कोई ऐसी उसकी बात हमारे सामने नहीं आई। ठीक है। ये सर महज अब्दुर्रहमान का अपना एक
था वो शैतानी चक्कर था। हाँ कि माँ गालियाँ देती है, बाप के साथ लड़ती थी। हाँ जी, वो तो अपनी एक देखें जी, वो तो अपनी स्टोरी पेश करेगा अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन तफ्तीशी अफसर जो होते हैं, जो पुलिस अफसर, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, मेरा मोहम्मद अली जो सब इंस्पेक्टर है वो बड़ा कॉम्पिटेंट है, वो तफ्तीश कर रहा है। इसमें हम तह तक इसकी तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टॉन हमें ये बता रहे थे कि इस कत्ल में मज़ीद क्या तफसील है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये बात तय है कि 5 मरले के घर के बंटवारे के लिए मुलजिम ने अपनी सुतेली माँ को कत्ल किया और मौके से फरार हुआ, जो पुलिस ने एक्शन करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया। ये थी आज के जुर्म और उसके अंजाम की कहानी कि लालची बेटे ने जायदाद की खातिर अपनी सुतेली माँ को कत्ल कर दिया। मकतूला के लवाहिकीन का कहना है कि इस कत्ल में सिर्फ सुतेला बेटा ही शामिल नहीं, और भी रिश्तेदार कत्ल में मुलविस हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, तमाम हकायक अदालत के सामने रखे जाएंगे और फिर मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। नई कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।